Matthias and all the team, all the leaders of Har Ghar Pratna Ghar. और वास्तविकता में मैं पास्टर मथियास और उनकी टीम को और हर घर प्रार्थना के हर मेंबर को शुक्रिया अदा करता हूँ. Time and again, I have already appreciated the efforts of all these leaders because they are continuously and consistently making the word of God available to all the people around the world. और मैं सब इन टीम के लिए इतना धन्यवादित हूँ कि वो पूरे संसार के अंदर प्रभु का वचन फैलाने में बहुत मेहनत से कार्य कर रहे हैं. Hallelujah. And as we study the word of God, as we meditate on the word of God every day, every morning, every evening, we are trained in the word of God now. जैसे हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, रोज उसके ऊपर ध्यान करते हैं और लगातार पढ़ते हैं, तो हम उसके अंदर अब पूरी तरह से सक्षम हो चुके हैं. Hallelujah. And God is helping us to understand and meditate on the word of God through these men of God who come daily and preach and share the word of God, share the gospel with us. So it has been really a blessings to many in the world. और परमेश्वर जो है वो हमें सहायता कर रहा है कि यहाँ पर इतने सारे प्रभु के लोग आते हैं, वचन को बांटते हैं और हम सब उसके ऊपर ध्यान लगाते हैं और ये वचन फैलता है और हम उससे आशीषित होते हैं. मैं इस चीज के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ. Hallelujah. Praise the Lord. So, see, today we are in a very perilous time. I always repeat that we are in the end times. We are in the beginning of the end times. We are in the perilous time. And it's a very daunting period that we are facing. आज की तारीख में मैंने आप सबसे कहा है कि आजकल हम एक बहुत कठिन समय में हैं. ये एक अंत का समय है जिसको हम सब देख रहे हैं और ये बहुत कठिन समय है जिसको आज हम फेस कर रहे हैं. Yes, and there are no good reports in the world today. If you see, you open the television, you read the newspaper, you read any media, you will find there is a hopelessness, confusion. There are wars. There are depressions everywhere. There are a lot of things which are going in the world. यदि आज आप टीवी खोलते हैं तो आपको पूरे संसार के अंदर ऐसी ही घटनाएं सुनने को मिलती हैं जो कि हमारे अंदर डिप्रेशन को लेकर आती हैं. वो हमें एक ऐसे मोड में ले आती हैं कि हम इन सारी घटनाओं से प्रभावित होते हैं. चाहे आप टीवी खोलिए, चाहे आप कोई अखबार पढ़िए, चाहे आप सोशल मीडिया के ऊपर कोई भी खबर देखिए, उनके अंदर इसी तरह की बुरी खबरें भरी रहती हैं. And if you see globally, there is increase in the, there is increase in the violence, there is increase in the crimes, there is increase in the brokenness, there is increase in the divorces. If you check out, if you go on the internet, you will find out there are 50% divorces, the 50% of the marriages are turning into divorces in US, 42% in UK, 1% in India, 2% in Africa, 2.3% in Australia. So this is all happening in the world. आप देखिए, अगर आप देखते हैं कि पूरा आपको खबरें जो मिलती हैं उससे पता चलता है कि हर जगह जो है वो अपराध हो रहे हैं, दुष्टता हो रही है और विवाह हो रहे हैं, लेकिन डाइवोर्स भी हो रहे हैं. और यूएस में 50% डाइवोर्स का रेट है और यूके के अंदर 42% है और इंडिया में 1% है. ये आज की स्थिति है. And even, see the loneliness, akelapan, the loneliness is increasing like cancer today. आज की तारीख में अकेलापन जो है वो एक कैंसर की तरह फैल चुका है. ये सच है कि लोग जो है वो बहुत अकेले हो गए हैं, अपने ऊपर निर्भर हो गए हैं बस, और कोई उनके आसपास नहीं है. And about 20 to 30% people globally experience loneliness today. आज की तारीख में 20 से 30% लोग जो हैं वो अकेलापन महसूस कर रहे हैं. And nearly almost 1 in 4 adults are feeling lonely today. आज की तारीख में 4 लोगों से अगर आप मिलते हैं तो उनमें से एक व्यक्ति जो है वो अकेलापन महसूस करता है. And 0.7% of adults are living in HIV. और
0.7% जो लोग हैं वो HIV में जी रहे हैं। Hallelujah. There is increase in the floods. There is increase in the earthquakes. There is increase in the broken marriages. Everywhere there is bad news. हर जगह आप अगर खबर सुनते हैं तो कहीं पर बाढ़ आ रही है, कहीं पर भूकंप आ रहे हैं और जगह जगह आपको सुनने को मिलता है कि शादियां टूट गईं। Hallelujah. So, and the most important factor is that 16% of the world population is growing to an atheism. आप ये इसका कारण ये है कि पूरे संसार की जो 16% जनरेशन है वो अब ईश्वर को न मानने वाली बन गई है। Yes. And this is the main reason that people are turning away from God. और यही कारण है, ये बुरी खबरें ही कारण है जिससे कि लोग परमेश्वर से दूर होते चले जा रहे हैं। And this is a very alarming situation. और ये एक सूचनात्मक परिस्थिति है जो कि हमें तैयार करती है आने वाले समय के लिए कि कैसा समय आ रहा है। And and if you see in the world, there are very few leaders, maybe Christian leaders or any leaders, where we can look up to. We can say they are the role models now. Nobody is having a moral. Most of them are failing. So it is very difficult for a normal man to follow, through integrity of a certain role model. So it is difficult for people to follow even the leaders, the celebrities. They are failing every day. You see the news. अगर आप संसार में चारों तरफ नजरें डालकर देखें, किसी भी देश के अंदर आपको चाहे वो क्रिश्चियन लीडर हो या कोई दूसरा लीडर हो, ऐसे प्रतिनिधि आपको नहीं मिलते हैं जिनको कि आप फॉलो कर सके। और ये एक बड़ी घातक स्थिति है कि हमें इस तरह के लोग दिखाई नहीं दे रहे जो कि हमारा मार्गदर्शन कर सकें। So what happens is, we are basically into such a perilous times, and we don't have any solution as a human being. If you look to anywhere, you find problems. Rather than solutions, there are problems. हम जो हैं एक इंसान होते हुए जब चारों तरफ देखते हैं तो हमें सिर्फ प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं और उसका कोई हल नहीं दिखाई देता। परीक्षाएं दिखाई देती पर उनका कोई हल नहीं होता। Do you agree with me? Yes. क्या आप मेरे साथ सहमत हैं? आप सब सुन रहे हैं, क्या आप लोग मेरे साथ सहमत हैं? Do you agree with me? Because see, Yes. we are facing all this. We are in the confusion. We are in the chaos. We are in the times of trouble. So everywhere there is confusion. Everywhere there is lot of chaos is going on. क्या आप मेरे साथ सहमत हैं कि हर जगह हबड़-तबड़ मची हुई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा? क्या आप मेरे साथ सहमत हैं कि कहीं हर ये स्थिति जो है वो घातक हो रही है? Yes, and when in this situation, I think there is only one thing where we can turn to, and that is the Holy Bible. इस तरह की परिस्थिति में हमारे पास केवल एक चीज है हम जिसकी तरफ मुड़ सकते हैं और वो है हमारा पवित्र शास्त्र। Hallelujah. So, hallelujah. So the solutions to the world's problem is only the Word of God. और पूरे संसार की हर तरह की जो चिंताएं हैं, जो मुश्किलें हैं, उनका हल सिर्फ है पवित्र बाइबल के अंदर। Hallelujah. Praise the Lord. Shall we raise our hands and say, Praise the Lord? Praise the Lord. क्या अपना माइक खोल के आप सब कह सकते हैं प्रभु की स्तुति हो? Praise Because the it is the Lord. Word of प्रभु की God. स्तुति हो। प्रभु का स्तुति हो। Hallelujah. So it is the Word of God that is going to help us out. The Word of God is going to, make us stronger. ये परमेश्वर का वचन है जो हमारी सहायता करेगा। ये परमेश्वर का वचन है जो हमें शक्तिशाली बनाएगा। And every day we are listening to the Word of God. और हम हर दिन जो है परमेश्वर का वचन सुनते हैं। Now let us meditate on the very important part of it's the 2 Timothy chapter 3. आइए हम निकालेंगे दूसरा तिमुथियुस और उसका तीसरा के ऊपर आज हम ध्यान करेंगे। Yes, and we will read from 16 to 17. We will read it. और हम
16 से लेके 17वीं आयत तक पढ़ेंगे। I'll read it for you first. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. मैं आपके लिए पढ़ूंगी। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। Hallelujah. Praise the Lord. Amen. What a Praise the wonderful Lord. word of God. क्या अद्भुत वचन है ये परमेश्वर का। हर एक वचन, in fact, every word of God is precious. It is more precious than the rubies and the golds in the world. वास्तव में परमेश्वर है वो मूंगे से भी अधिक अनमोल है, रुपए से भी अधिक महंगा है। परमेश्वर का वचन अद्भुत है। Hallelujah. Praise the Lord. So we will dive deep into this particular word of God that says all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. ये बड़ा अद्भुत वचन है जो मैं दोबारा से आपके लिए पढ़ूंगी। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। Hallelujah. Praise the Lord. So we will go one by one what the word of God says here. We'll हम एक-एक करके देखेंगे कि Yes. परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या कहता है। Because the word of God says if you want to search the pulse of the word of God, you need to dive deeply into the sea of the word of God. यदि आप परमेश्वर के वचन के मोतियों को ढूंढना चाहते हैं तो उसके वचन के समुद्र में आपको गहरा जाना पड़ेगा। Hallelujah. You need to dive deeper. आपको और गहरा जाना पड़ेगा ताकि आपको वचन के ये मोती मिलें। Yes. Now the first part of the scripture, it says that the scripture is given by the inspiration of God, because inspiration of God means it has an authority and it comes directly from God. जो ये आयत है, इसकी आयत कहती है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया, यानी ये जितना भी शास्त्र है ये परमेश्वर की इच्छा के से रचा गया, जो कि उसके अधिकार को दिखाती है। Hallelujah. And if you see other versions of Bible, you'll see there it is written, instead of inspiration of God, somewhere it is written breathed out by God. अगर आप बाइबल के दूसरे वर्जन्स को देखें तो वहां पर इंस्पिरेशन या प्रेरणा की जगह जो है वो ग्रेट, महान लिखा गया है। नहीं, breathed out means breathing. God breathed out, you know. ओके। तो वहां पर ये लिखा गया है कि परमेश्वर ने अपने सांस की सहायता से इस वचन का निर्माण किया। Yes, because see, when God created Adam, he breathed life and the spirit into Adam, and that's why he became with life. क्योंकि आप देखिए जब परमेश्वर ने आदम और हवा की रचना करी थी तो उसने अपना श्वास उनके अंदर फूंका था और उनको जीवन मिला था। That breathing is what? The Spirit of God, and the Spirit of God is speaking to us today. और ये सांस फूंकना जो है ये क्या है? स्पिरिट है, खुदा का पवित्र आत्मा है, जिसके बारे में आज हम जानेंगे। Hallelujah, praise the Lord. So the first thing, it is an inspiration of God. What is the word of God? So somebody asking you why you are giving so importance to the word of God. Every now and then you hear the word of God, you read the Bible. So we must be able to stand for the word of God. We must be able to confront the people and to tell the people what are the advantage of the word of God. बहुत बार लोग कहते हैं कि क्या है ये पवित्र शास्त्र जिसको आप पढ़ते हैं, बहुत सारी बातें वो लोग कहते हैं, लेकिन आपको तैयार रहना है कि आप उनको समझा सकें कि वास्तव में ये पवित्र शास्त्र क्या है। Yes, hallelujah, praise the Lord. So firstly, it is an inspiration of God. The second, it is profitable for doctrine.
पहली बात ये है कि ये परमेश्वर के द्वारा प्रेरणा परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया, और दूसरा है कि ये उपदेश, Yes, it is used for doctrine, for teaching, and making us stronger in the doctrines. उपदेश का अर्थ है कि ये प्रयोग किया जाता है कि लोगों को समझाया जा सके, उनको इंस्पायर किया जा सके, उनको परमेश्वर में आगे बढ़ने के लिए बताया जा सके। Hallelujah. So the word of God has four things which separates how the word of God is going to affect, how the word of God is powerful. The first is doctrine, or you can say teaching. Then the second one is reproof. The third one is correction, and the fourth one is instruction or training, you can say. इसमें चार चीजें हैं जो कि परमेश्वर के वचन से हमें सीखने को मिलती हैं। पहली है टीचिंग, पढ़ाना, कि हम समझा सकते हैं, और दूसरी है रीप्रूफिंग, जिसमें कि हम लोगों की बातों को ठीक कर सकते हैं कि वो उनकी सोच क्या है और हम उसको ठीक कर सकते हैं, उनको हम करेक्ट कर सकते हैं, उनको हम बाइबल की सहायता से करेक्शन दे सकते हैं। पास्टर जी, चौथी बात क्या थी? इंस्ट्रक्शन और ट्रेनिंग इन राइचियसनेस। और फिर हम उनको धार्मिकता के रास्ते में कैसे चलना है वो हम उनको रास्ता दिखा सकते हैं, उनको इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, उनको एक रास्ता दे सकते हैं कि वो उसके ऊपर चलकर अपने आप को ठीक करें। So whenever you open the Bible, always remember these four fingers. It will talk about, and the first finger. Yeah, if you recollect, when you start reading the Bible, always remember that this word of God is going to teach me something. It is going to reproof, or it is going to rebuke me, or it is going to correct me, or it is going to instruct me or train me in righteousness. जब आप कभी भी बाइबल खोलें तो आप अपने हाथ की चारों उंगलियों को सामने रखें। एक उंगली जो है वो ये बताती है आपको कि बाइबल आपको टीच कर रही है, आपको पढ़ा रही है। पहली उंगली आपको बताएगी कि बाइबल जो है वो आपको पढ़ा रही है, आपको ज्ञान दे रही है। दूसरी जो उंगली है वो आपको ये बताएगी कि आपके अंदर क्या क्या गलतियां हैं, आपको रिब्यूक करेगी, डांटेगी भी। और तीसरी चीज है करेक्शन, कि आप अपनी गलतियों को किस तरह से ठीक कर सकते हैं, आप अपने आप को कैसे सुधार सकते हैं। और चौथा है कि फिर वो आपको रास्ता दिखाएगी, करेक्ट करके आपको रास्ता दिखाएगी कि आप अपनी धार्मिकता को बढ़ाने के लिए कैसे उस रास्ते के ऊपर चलें। Hallelujah, amen. So when you open the Bible anytime in your loneliness or maybe in the assembly of God, always remember, whenever you start reading the word of God, always remember that God is going to speak, or He's going to teach you, or He's going to correct you, He's going to rebuke you, or He is going to train you properly in the righteousness. That is the main purpose of the word of God. जब कभी भी आप अकेले हों या आप भीड़ के अंदर हों और आप बाइबल, तो आप ये बात ध्यान रखिए कि ये वचन जो है आपको सिखाने जा रहा है, आपकी कमियों को दूर करने जा रहा है, आपकी कमियों को ठीक करने जा रहा है, और आपको वो रास्ता दिखाने जा रहा है जिससे कि आप धार्मिक रास्ते के ऊपर चलकर एक बलवान, परमेश्वर के अंदर एक बलवान व्यक्ति बन सकते हैं। Start with the first one, the doctrine or teaching. आइए हम सबसे पहले टीचिंग के बारे में, पढ़ाई के बारे में, कि हमें क्या सिखाता है उसके बारे में जानेंगे। We need a witness of two words so that it will be established. हमें अगेन रिपीट करेंगे सर? At least there should be a witness of two words so that the word is established. Word ko agar you find out a reference of that particular word in another the reference of the same thing, so it be established. इसको सीखने के लिए हमें दो चीजों की गवाही चाहिए होती है, और वो बाइबल में से ही मिलेगी, जिससे कि हमें समझ में आएगा कि ये वचन हमें क्या कहना चाहता है। Hallelujah, praise the Lord. So we will read John chapter 16 verses 8. हम निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 16वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत।
Now it says, when he is come, he will reprove the world of sin and of righteousness and of judgment. ये आयत ऐसे कहती है, 8वीं आयत ऐसे कहती है, वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा. Hallelujah. So, first of all, what it will do is, when he is come, that means when the Holy Spirit of God comes, when the Holy Spirit is, in bit, because of the seventh word, it says, nevertheless, I tell you the truth, it is expedient for you that I go away, for I go not away, the Comforter will not come unto you, but if I depart, I will send him unto you. So, Jesus is talking about the Holy Spirit. उससे ऊपर की जो 7वीं आयत है, वहां पर इस तरह से लिखा हुआ है, तो अभी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा. और यहाँ पर जीसस जो हैं वो पवित्र आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं. And he says in that verse that when he is come, that means when the Holy Spirit comes, when the Holy Spirit's presence is there, he will reprove the world of the sin, of righteousness, and of judgment. तब इसीलिए उसने ये कहा कि वो आकर, आने के बाद वो जो है धार्मिकता को और पाप के विषय में संसार को जवाब देगा और उसके सारे प्रश्नों को के उत्तर देकर उनको आगे के लिए खत्म कर देगा. And even the 9th verse is also absolutely connected to this, of sin, because they believe not on me. और 9वीं आयत जो है वो भी इसी से कनेक्टेड है, जहां पर इस तरह से लिखा हुआ है, पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते. It is the Holy Spirit that convicts us about the sin. और ये पवित्र आत्मा है जो हमें पाप के बारे में बताता है. And the 10th verse also it says, of righteousness, because I go to my Father and you see me no more. और 10वीं आयत कहती है धार्मिकता के विषय में, इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर न देखोगे. And it says in 11th verse, of judgment, because the prince of this world is judged. और यहाँ पर 11वीं आयत कहती है न्याय के विषय में, इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया जाए. So you see how beautifully the word of God is going to, it is going to operate on you. ये देखिए कि कितने अद्भुत तरीके से, कितने सुंदर तरीके से परमेश्वर का वचन आपके ऊपर काम करेगा. It's going to do a surgery. ये हमारा ऑपरेशन करने वाला है. And there is in the old days, there used to be open heart surgeries. और आपने देखा है बुढ़ापे में बहुत बार हृदय की सर्जरी होती है, जो ओपन हार्ट सर्जरी कहलाती है. Nowadays they have that new they have a new kind of surgery where you don't need to open the heart totally, but they use the new technology. या आजकल जो है इतनी आधुनिकता आ गई है, ऑपरेशन के लिए हृदय को खोलने की जरूरत नहीं होती, वो बिना हृदय को खोले लेप्रोस्कोपी से ही आपके दूरबीन की सहायता से आपके हृदय के अंदर करेक्शन कर देते हैं, उसको ठीक कर देते हैं. See, this the same thing, the word of God is going to operate on you. If there is any sickness, that means if there is something which is against the will of God, it is going to remove from your spiritual, world. इसलिए इसी तरीके से परमेश्वर का वचन आपके अंदर काम करेगा कि अगर आपके अंदर कोई सिकनेस है, सिकनेस का मतलब शारीरिक बीमारी नहीं, आपके धार्मिकता के अंदर अगर कोई सिकनेस है तो परमेश्वर का वचन उसे दूर करेगा. Hallelujah. It will make use all kinds of the verses of the Bible, and it will convict you of your sin. Hallelujah. And it will, completely make you clear all the clogs, all the blockages inside your heart, and it will create a clean new heart in you. और बहुत आपके इस पवित्र शास्त्र की बहुत सारी आयतों को इस्तेमाल करके आपके हृदय की जो ब्लॉकेज है और जो कमियां हैं, उन कमियों को दूर करके आपको बिल्कुल एक नया हृदय वो देगा. And the doctor is
है। और जो हमारा डॉक्टर है वो कौन है? Jesus. Jesus जीसस। Christ is the doctor. He is the जीसस healer. क्राइस्ट He, डॉक्टर। he is the Yahweh Rapha. हाँ, या Hallelujah. वो यहोवा राफा है जो कि हमें चंगाइयां देता है। ये शारीरिक Hallelujah. चंगाई नहीं, आत्मिक चंगाई की बात है। Yes, this is the spiritual healing that the word of God is going to bring today ये onward. हमारी आत्मिक चंगाई है जिसे कि परमेश्वर का वचन ठीक करेगा। Hallelujah. Praise the Lord. So how wonderful is the word of God? देखिए परमेश्वर का वचन कितना अद्भुत है। Hallelujah. Praise the Lord. Now we will go to how does the word of God convicts us, reproof or convict or you may say rebuke. अब हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन किस तरीके से हमें दोषी ठहराता है, हमें रिब्यूक करता है, डांटता है, और कैसे हमें रिप्रूफ करता है। Hallelujah. If you remember, Jesus, he rebuked the Pharisees and the Sadducees. अगर आप याद करें कि वचन में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने फारसियों को पकड़ा था। Yes, he used to rebuke the religious leaders. He used to rebuke the chief this thing, all the religious leaders and the Pharisees and the Sadducees. जितने भी उस टाइम के सदूकी और फारसी पढ़ाने वाले हुआ करते थे, सिखाने वाले हुआ करते थे, यीशु मसीह ने उन सबको डांटा जो कि उस टाइम के गुरु हुआ करते थे। ये सदूकी और फारसी जो गुरु हुआ करते थे, उनको यीशु ने डांटा। Yes. Now see, very wonderful word of God. It talks about this particular thing. How Jesus used the rebuke or he reproved the disciples. If you see Mark chapter 8 verses 33. इसे देखने के लिए हम निकालेंगे मरकुस उसका 8वां अध्याय और उसकी 33वीं वचन, 33वीं आयत। Yes, but it says, but when he had turned about and looked on his disciples, he rebuked Peter, saying, get thee behind me, Satan, for thou soberest not the things that be of God, but the things of that be of men. अब ये देखिए कि जिस तरह से वो सदूकी और फरीसियों को डांटता था, अपने चेलों को सिखाने के लिए भी यहाँ पर जो लिखा हुआ है, आप मरकुस के 8वें अध्याय की 33वीं आयत में इस तरह से लिखा हुआ है, परंतु उसने फिर कर अपने चेलों की ओर देखा और पतरस को झिड़क कर कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। Yes. Now, if you see the background, here Jesus was talking to the disciples about him going to Jerusalem, dying on the cross and suffering for all of us. But Peter, in his flesh, he was trying to rebuke even Jesus there clearly in the earlier word, that is 32. यहाँ पर यीशु मसीह जो है वो अपनी मृत्यु के विषय में बात कर रहा है कि किस तरीके से वो यरूशलेम जाएगा, वो यरूशलेम जाएगा, उसको मारा जाएगा और वो 3 दिन के बाद वो जी उठेगा। और उसने ये बात बिल्कुल साफ साफ कह दी थी। और अब 32वें आयत में लिखा है, उसने ये बात उनसे साफ साफ कह दी। इस पर पतरस से अलग ले जाकर झड़कने लगा। देखो, so in a sense, Peter was trying to oppose what Jesus was trying to do. He was coming against the plan of God. यहाँ पर देखिए कि पीटर जो है, पतरस जो है, वो जीसस की कही हुई बात को काट कर परमेश्वर के प्लान के विरुद्ध जा रहा है। Hallelujah. And that's why Jesus said, he straight away said, get thee behind me, Satan. इसलिए यीशु मसीह ने एकदम से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा। It was very unusual about Jesus. He never said to his disciples like this, but he had to say because Peter was going against the plan of God there. क्योंकि यहाँ पर यीशु मसीह ने एकदम से ये वाली बात कही, वो इसलिए कही क्योंकि वहां पर पीटर नहीं, उसमें से होकर शैतान बोल रहा था, जो कि
परमेश्वर की प्लानिंग के बिल्कुल विरुद्ध बोल रहा था, इसलिए उसने उसको इस तरीके से डांटा, जबकि यीशु मसीह का स्वभाव ऐसा नहीं था। और देखो, one of the very interesting part of this part of Mark's scripture, 8th chapter is very clear. In earlier verses, if you see, it says in 29th same chapter 29th verse, it says, and he said unto them, but whom say that ye I am? And Peter answered and said unto them, thou art Christ. He was the same person who first of all confessed that Jesus Christ is the Lord, and after a few moments immediately he is coming against the will of God. ये मरकुस की पत्री जो है बड़ी अद्भुत पत्री है। अगर आप इसमें थोड़ा सा ऊपर देखें, जो 29वीं आयत है उसमें लिखा Yes. हुआ है, और उसने उनसे पूछा, तुम मुझे क्या कहते हो? और पतरस ने उसको उत्तर दिया, मसीह, कि तू मसीह है। यहाँ पर थोड़ी देर पहले ही पतरस जो है वो इस चीज को मान रहा है कि यीशु Yes. मसीह जो है वो मसीह है, खुदा का बेटा है, और लेकिन Yes. उसके थोड़ी देर के बाद ही वो Yes. खुदा के प्लान के विरुद्ध चला गया। Yes. So, you can understand from here, a man can fall from anywhere and any time. यहाँ पर आप समझ सकते हैं, इस रेफरेंस से आप समझ सकते हैं कि इंसान जो है वो कभी भी गिर सकता है परमेश्वर से। Anytime. Because the word of God says in Romans 3:23, no one is righteous and everyone has fallen short of the glory of God. क्योंकि आप ये देखिए कि रोमियो की 3 अध्याय की 23वीं आयत में ऐसा लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति धार्मिक नहीं है। तो इसलिए इंसान, कोई भी व्यक्ति जो है वो कभी भी गिर सकता है। जैसे कि हम पतरस का उदाहरण देखते हैं कि पतरस थोड़ी देर पहले कह रहा है कि हाँ तू मसीह है, और उसी के थोड़ी देर के बाद वो कह रहा है कि नहीं, तू ऐसे क्या कर रहा है, और वो यीशु मसीह को झिड़कने लगता है। Hallelujah. So now we see that the third part was rebuking. So we learned it from Jesus itself, that if you are going against the will of God, you have every right. You have every right to go against that person in the context of the word of God. अगर यहाँ पर ये वाली बात सिखाई जा रही है कि अगर आप परमेश्वर से दूर हो गए तो आप परमेश्वर के प्लान से भी दूर हो जाते हैं। Hallelujah. And you have every right as a believer, if you are strong, rooted in the word of God, and somebody fails to understand the will of God, you have every right to correct him, you rebuke him. अगर आप परमेश्वर के वचन में आप स्ट्रांग हैं, आपको पूरा फेथ है, आपका विश्वास है, तो ऐसे व्यक्ति को आप राही रास्ते पर ला सकते हैं जो कि परमेश्वर के वचन के विरुद्ध चल रहा है। Many, they fear that I may be out of his favor, but it is very important. If somebody is making a mistake, somebody is turning away from the will of God or turning away from the word of God, or if he is backsliding, it is a duty of a strong believer or a matured believer to correct him, to rebuke him, and bring him into the plan of God. यहाँ पर ये बात सिखाई जा रही है कि अगर आप परमेश्वर के वचन में मजबूत हैं और आप ऐसे लोगों को देख रहे हैं कि जो परमेश्वर से दूर जा रहे हैं या परमेश्वर के वचन में गलत कर रहे हैं, तो आप उनको समझाने का हक रखते हैं। आपको ये नहीं सोचना कि ये मेरे विरुद्ध हो जाएगा, या अरे मेरे को इससे ये लाभ मिलता है, ये लाभ नहीं मिलेगा। परमेश्वर के वचन के लिए आपको अपने लाभ के बारे में नहीं सोचना, उस व्यक्ति को सही राह दिखानी है। Yes. So now we have finished 3 parts. Now we are coming, we have finished almost. First is doctrine, reproof, correction. Now we are coming to correction. अब हम जो है करेक्शन के ऊपर आते हैं, सुधार के ऊपर आते हैं कि सुधार कैसे करना है। So where is the support for this? If you go to Hebrew chapter 12, verses 5 to 6, if you open our Bibles, you see it is beautifully written here. अब जो है हम सुधार के बारे में देखेंगे इब्रानियों और उसका 12वां अध्याय, 12वां चैप्टर
And verses 5 to 6. वर्सेस 5 to 6 आप पढ़िए Yes. फिर मैं पढ़ And you have forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto children. My son, despise not thou the chastening of the Lord, nor faint when thou art rebuked of him. For whom the Lord loveth, he chasteneth, and scourgeth every son whom he receiveth. वर्सेस कौन सी है पास्टर जी बोलिएगा जरा 5 and 6. 5 and 6 Hebrew chapter 12, हाँ 5 verses and 5 and 6. और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वो तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है। Hallelujah. So, when God is going to correct us, when God is going to rebuke us, when God is going to correct us, or He is going to, correct in the sense that we have made any mistake, so we must very humbly, we must accept it. और जब कभी भी परमेश्वर जब हम कुछ गलत करते हैं और वो हमारी ताड़ना करता है, तो हमें बड़ी दीनता से और नम्रता से उस बात को ग्रहण कर लेना चाहिए। Hallelujah. Praise the Lord. So we have come now. We have finished doctrine. We have finished reproof. We have finished correction. Now we are going to come to the training part. अब हमने 3 चीजों को खत्म कर लिया है, पढ़ाई और हमारा जो रिब्यूक था उसको और हमारा जो सुधार था उसको। अब हम ट्रेनिंग में आते हैं कि किस तरीके से हमें सूचनाएं देकर एक प्रोग्राम बनाना है कि हमारे जो लोग हैं वो धार्मिक स्थिति में चलते रहें। Hallelujah. So basically, see now this is a training. That means instructing in the righteousness. ये जो है, ये ट्रेनिंग जो है, इसका मतलब ये है कि हमें सही रास्ता दिखाना है कि एक इंसान अपने रूप में अपने धार्मिक रास्ते पर कैसे चले। ये एक प्रशिक्षण है, ये एक प्रशिक्षण जिसमें कि हम सामने वाले को ये सिखाएंगे कि वो अपनी धार्मिकता को कैसे कायम रखे। And this training is a total education in the Word of God and in your walk, in your spiritual walk in Christ. और ये प्रशिक्षण जो है ये कोई सांसारिक नहीं है, ये सिर्फ आत्मिक प्रशिक्षण होगा कि किस तरीके से आप अपने विश्वास को कायम रखें और किस तरीके से आप धार्मिक मार्ग पर चलें। Hallelujah. And if you see this particular chapter, that is 2 Timothy, 1 Timothy, Apostle Paul is trying to educate, trying to train, trying to encourage his spiritual son, whose name was Timothy. अगर आप देखें जो ये तिमुथी का जो चैप्टर है, इसमें जो पॉल प्रेरित हैं वो अपने इस आत्मिक पुत्र तिमुथी को सिखा रहे हैं, अब ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको उसको प्रशिक्षण दे रहे हैं। Yes, absolutely. And when he is imparting his training, he is setting an example before us, because this chapter itself, 2 Timothy and 1 Timothy, is a very beautiful kind of say a meditation for pastors, teachers, and those who are going to work for the kingdom of God. इसलिए आप देखिए कि जो पहला तिमुथी और दूसरा तिमुथी, इस पत्री के अंदर जितने भी चैप्टर हैं, अगर आप उन सब को पढ़ें तो ये बहुत अच्छा प्रशिक्षण है उन सब लोगों के लिए जो कि पास्टरशिप करते हैं, जो याजक का कार्य करते हैं, या जो वचन को फैलाने का कार्य करते हैं, या जो वचन को सिखाने का कार्य करते हैं। उन सब के लिए ये दोनों पत्रियां जो हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। Hallelujah. And it is a journal of training spiritual sons. If you are at the age of training people now, if you are matured in Christ, so if you want to know how to train the disciples, how to train
the young Turks, so you must study 1st and 2nd Timothy because it talks about training the disciples, making disciples. ये जो है पहला तिमोथियस और दूसरा तिमोथियस आपके हाथ में हस्त पुस्तिका है, जिसकी सहायता से आप उन लोगों को जो कि आगे चलकर प्रभु का कार्य करने वाले हैं, उनको आप प्रशिक्षण दे सकते हैं। बहुत अच्छा इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है और आप उसको इस्तेमाल करके लोगों को धार्मिकता में बढ़ने के लिए, धार्मिक कार्यों का प्रचार करने के लिए, वर्ड ऑफ गॉड का प्रचार करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। I got saved in 2000, in 2002, 2003, and then our founder, Dr. Arthur Prem, he recommended me to join Haggai Institute and get trained in the national leadership. मैं 2002-3 में बचाया गया और जो मेरे फाउंडर थे, जो मेरे को सिखाने वाले थे, डॉक्टर आर्थर प्रेम, उन्होंने मुझे हगाई के लिए भेजा, जहां पर कि इस तरह के लीडर तैयार किए जाते हैं। And I'm telling you, when I attended that, national leadership in Pune, I was so happy. I was so beautifully trained. I know there are so many. This Haggai Institute is doing a wonderful job of training disciples in Christ. और मैं सच में आपको ये बताकर खुशी महसूस करता हूँ कि जब मैंने ये नेशनल प्रोग्राम पुणे में अटेंड किया, तो वो इतने सुंदर तरीके से लोगों को तैयार करते हैं कि जिसे मैं आपके सामने शब्दों में बता नहीं सकता। And they are training all over the world. It is one of the premier institute that trains disciples in Christianity. और वो पूरे के पूरे संसार के लोगों को इसके लिए तैयार करते हैं और ये पूरे संसार में अपनी तरह का केवल एक ऐसा संस्थान है जहां पर कि धार्मिक लोग तैयार किए जाते हैं। And I'm telling you with a pride that when I attended that for 3 days, I was filled with the Holy Spirit, and I know my journey towards, in working for the kingdom of God, it totally changed. I'm telling you from the bottom of my heart. It really helped me how to share the gospel in the midst of the Gentiles, in the midst of the Christian people. So I was it helped me very nicely. आपको मैं बड़े हृदय की गहराइयों से बताना चाहता हूँ कि मैं इस 3 दिन के प्रोग्राम को अटेंड करके अद्भुत तरीके से अपने आप को मैंने तैयार किया। किस तरीके से मेरी विचारधारा बदल गई और मैं प्रभु के कार्यों में लग गया और मैं प्रभु के वचन को सुनाने में लग गया। बहुत अद्भुत और अच्छे सुंदर तरीके से मैं तैयार हुआ। And I was really trained there. And I recommend all of you, if you want to work for the kingdom of God, please go and register your name in this Haggai Institute. It is training you beautifully how to share the gospel, where to share the gospel, how to share the gospel, how to confront people. It's very essential that you get trained in such teachings. और सच में मैं बहुत आनंदित हूँ कि मैं इस इंस्टीट्यूट में अपने आप को तैयार कर सका और मैं आप सबको भी ये कहना चाहूंगा कि आप लोग इस नेशनल लीडरशिप प्रोग्राम पुणे के अंदर अपने आप को हगाई के लिए अपने आप को रजिस्टर करें, अपने आप को तैयार करें। ये आपको सिखाएंगे कि किस तरह से आप वचन को पढ़ें, किस तरह से आप अपने विश्वास को मजबूत रखें, किस तरह से आप प्रभु के वचन को फैलाएं, किस तरह से आप लोगों के अंदर इस वचन के द्वारा काम करें। And it really helped me even when we were visiting the prison along with our founder member, Dr. Arthur Prem, for the prison ministry. So it really helped me in my spiritual walk. और इस कार्यक्रम ने, इस प्रशिक्षण ने मुझे इतना तैयार किया कि जब मैं क्रॉस रोड की मिनिस्ट्री में कैदियों से मिलने के लिए जाता था, तो सच में इस कार्यक्रम ने मुझे बहुत मदद करी और मैं उनसे बात करने में बिल्कुल नहीं घबराया और मैंने उनको प्रभु का वचन बड़े अच्छे तरीके से समझाया। So this is how, you need to be trained properly. If you want to work in the kingdom of God, you need to be disciplined, you need to be proper, you need to be apt. It's not, just you can go and then share the gospel. It's not like that.
You need to be very prepared for what kind of questions you're going to have, what kind of people are going to listen to you. That's very important. इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि यदि आपको परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करना है तो आपको इस तरह के प्रशिक्षण जरूर आपको अटेंड करने चाहिए ताकि आप तैयार हो सकें, आपको समझ में आ सके कि किस तरीके से आपने वचन को पढ़ना है, उसको कैसे समझना है, उसको कैसे लोगों के बीच में शेयर करना है और कैसे इस वचन को फैलाना है। एक आप डिसिप्लिन में आ जाएंगे, आप एक अनुशासन में आ जाएंगे, आपको एक अनुशासन के अंदर वचन फैलाने का एक गुण मिल जाएगा। That's how, it's a word of God and, professional training that will help you in your walk in the spiritual and help yours to be used for the kingdom of God. और आप ये जानते हैं कि ये प्रशिक्षण जो है ये आपको परमेश्वर के वचन को फैलाने के लिए सहायता करेगा और ये बहुत अद्भुत है और सहायता करता भी है। मैंने इस चीज को बहुत महसूस किया है। Hallelujah. Now, see, we will see how, one person, David, I always, in my sermons, in my messages, I always mention David because he's a perfect example in the Old Testament about people's, weaknesses, about the imperfectness of people. And so I would like you to read with me 1 Samuel chapter 24. आपको मैं बताना चाहूंगा, मुझे बहुत पसंद है डेविड के बारे में। डेविड Yes. जो है वो एक पुराने नियम के अंदर एक बहुत अद्भुत और एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पहला शमूएल और उसके 24वां अध्याय जो है उसके अंदर लिखा हुआ है, वो भी कमजोरियों से लबरेज था लेकिन वो एक अद्भुत इंसान था। Hallelujah. See, if you, he was so much rooted in the word of God. He was so much walking with the word of God that David, when he was confronted with Saul was after his life. आप ये देखिए कि वो परमेश्वर के अंदर इतना डूबा हुआ रहता था, वो परमेश्वर के वचन के साथ इतना चलता था कि जब वो शाऊल से मिला, जो कि दाऊद के प्राणों के पीछे पड़ा हुआ था। Now see, it is beautiful word. It says in the chapter 24 verse 6, and he said unto his men, the Lord forbid that I should do this thing unto my master, the Lord's anointed, to stretch forth mine hand against him, seeing he is the anointed of the Lord. देखिए उसने अपने लोगों से क्या कहा। हालांकि शाऊल जो था वो दाऊद के पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन जो 30 आयत है उसमें उसने क्या कहा, वो अपने जनों से कहने लगा, यहोवा ना करे कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त है ऐसा काम कि उस पर हाथ उठाऊं, क्योंकि वो यहोवा का अभिषिक्त है। देखिए परमेश्वर का दाऊद जो है वो कितना अभिषिक्त व्यक्ति था कि उसने अपने दुश्मन को सामने देखकर भी इस तरह की बात अपने लोगों से कही। Oh, he was so righteous. So he was not, Saul was, at that place and he had every chance to, kill him. But he did not take that opportunity. He was a man of integrity. देखिए दाऊद जो है वो कितना अभिषिक्त था, दाऊद कितना अपने परमेश्वर के साथ चलने वाला था, जबकि शाऊल उसके पीछे पड़ा हुआ था और उसको कितने सारे अवसर मिले थे कि वो शाऊल को मार सके, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो अपने प्रभु में विश्वासी योग्य था। This is the word of God in action. This is word of God in action. ये जो है ये परमेश्वर का वचन हमें क्रियात्मक रूप में दिखाई देता है। यहाँ पर क्रियात्मक रूप में दिखाई देता है। सिर्फ यहाँ पर दाऊद ने ये नहीं कहा कि मैं परमेश्वर के पीछे चल रहा हूँ, उसने करके भी दिखाया कि भाई उसने अपने दुश्मन को मारा नहीं, सामने होते हुए मारा। He walked the talk and he was walking the talk. He was walking the talk. That means जो उसने कहा वो किया भी उन्होंने। Yes, या जो उसने कहा
अपने लोगों से उसने ये चीज कहा कि मैं उसके ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहता, Yes. और वही उसने किया। मतलब जो उसने परमेश्वर को हाजिर जानकर कहा, उसके ऊपर वो कायम रहा। He walked the talk. उसने वही किया जो उसने कहा। See, this is very beautiful verse. 11th verse, moreover, my father, see the skirt of thy robe in my hand, for in that I cut off the skirt of thy robe and killed thee not. Know thou and see that there is neither evil nor transgression in my mind, and I have not sinned against thee. Yet thou huntest my soul to take it. Wow. अब देखिए दूसरी बात, देखिए आप 11वीं आयत में, जहां पर इस तरह से लिखा है, फिर हे पिता, हे मेरे पिता, देख हाँ, अपने बाग और मेरे हाथ में देख, मैंने तेरे बागे की छोर को काट लिया, परंतु तुझे घात ना किया। ये शाऊल को ईश्वर ने दाऊद के सामने कर दिया था। यहाँ पर ईश्वर भी दाऊद की परीक्षा ले रहे हैं। खुदा जो है, यहोवा जो है, वो भी दाऊद की परीक्षा ले रहा है कि वाकई में जो इसने कहा है ये उसके ऊपर कायम रहता है या नहीं। उसके हाथ में शाऊल को कर दिया और उसने उसके बागे का छोर भी काट लिया, और उसने कहा कि परंतु मैंने तुझे घात नहीं किया। इससे निश्चय करके जान ले कि मेरे मन में तेरे लिए कोई बुराई या अपराध की सोच नहीं है। मैंने तेरे विरुद्ध कोई अपराध नहीं किया, परंतु तू मेरा प्राण लेने को मानो उसका अहेर करता रहता है। this is word of God in action. ये परमेश्वर का वचन क्रिया के रूप में है, करने के रूप में है। Because the word of God says, do not just say the word, but be the doers of God word. है ना, ऐसा वो वचन है। क्योंकि वचन भी ये कहता है कि सिर्फ उसको सुनकर मत छोड़ दो, उसके ऊपर विश्वास करो। Yes, उसके ऊपर act विश्वास भी upon it, करो, act upon the word of God. तो वो कहलाएगा आपका एक्ट, आपकी क्रिया, आपका करना, कि आपने ईश्वर के ऊपर, परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास किया। And you see beautifully, Saul, even though he claims, he confesses that God is going to give you the kingdom of Israel. In the 20th verse, it says, now behold, I know well that thou shalt surely be king, and that the kingdom of Israel shall be established in thy hand. और शाऊल को पता था, शाऊल भी जान गया था कि यहोवा जो है वो दाऊद को राज्य देने पर है। इसलिए 20वीं आयत कहती है, और अब मुझे मालूम हुआ कि तू निश्चय राजा हो जाएगा और इजराइल का राज्य तेरे हाथ में स्थिर रहेगा। Yes, hallelujah. So even the enemy will confess that you are righteous, then even Saul says you are more righteous than me. यहाँ पर उसके दुश्मन ने, दाऊद के दुश्मन ने भी इस बात को मान लिया कि तू मेरे से ज्यादा धार्मिक है, और Hallelujah. उसने भी इस बात को कह दिया कि हाँ, परमेश्वर अब तुझे राज्य देने जा रहा है। उसने परमेश्वर, it says in 17th verse, it's beautiful. And he said to David, thou art more righteous than I, for thou hast rewarded me good, whereas I rewarded the evil. यहाँ पर 17वीं आयत देखिए क्या कहती है कि फिर उसने दाऊद से कहा, तू मुझसे अधिक धर्मी है, तूने मेरे साथ भलाई की है, परंतु मैंने तेरे साथ बुराई की है। यहाँ पर शाऊल ने कन्फेशन कर लिया कि मैं तेरे से कम धार्मिक हो गया हूँ। Hallelujah. So if you are trained in the word of God, if you are rooted in the word of God, you will find that you will put the word of God in action, because that is more important. Just do not just say the word or mug up the word, but put it into action. यदि आप परमेश्वर के वचन में गहराई से उतरें तो आप उस वचन को एक्शन में लेकर आएंगे, आप उस वचन के अनुसार कार्य करेंगे, आप सिर्फ सुनकर उसे छोड़ नहीं देंगे। Hallelujah, praise the Lord. And see, wonderfully we can see the life of David. It was fully the word of God in action, and that's why he's called a man after God's own heart. ये आप देखिए कि जो डेविड की जो जीवन है उसके अंदर हर पल परमेश्वर दिखाई देता है, इसीलिए वो परमेश्वर का एक अद्भुत भक्त कहलाया। Hallelujah. I just wonder every time why he's called a man after God's own heart. Why he's called a man after God's own heart.
But this particular, when I was studying this first chapter, 1 Samuel chapter 24, I got to know that this man was really having the heart of Jesus. ये मैं भी यही सोचता था कि दाऊद को ऐसा क्यों कहा जाता है, लेकिन सच में जब मैंने इस जगह पढ़ा तो मेरे को समझ में आया कि दाऊद का जो हृदय है उसके अंदर यीशु मसीह था। Hallelujah. Long before the Sermon on the Mount, it is David here who is forgiving his enemy, that is Saul, King Saul. He never read the gospel, but here wonderfully he has forgiven his enemy, because the word of God says, Jesus said, love thy neighbor and also forgive your enemies. पहाड़ी पर जो यीशु मसीह ने जो उपदेश दिया था कि अपने दुश्मनों को माफ करो, उससे पहले ही यहाँ पर देखिए दाऊद ने अपने दुश्मन को माफ करके एक यहाँ पर एग्जाम्पल सेट कर दिया। यीशु मसीह के कहने से पहले इसका मतलब दाऊद के हृदय में यीशु मसीह वास करता था। The root of David. Why? Jesus is called the root of David. और इसीलिए दाऊद के लिए यीशु मसीह जो था वो जड़ था, उसकी जड़ था, अब उसके दिल के अंदर रहता था। और उसने If you want to study Jesus, you study David. I'm definitely telling you, you will see, explore so many qualities of Jesus in David itself. अगर आप यीशु मसीह के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि आप दाऊद के विषय में जरूर पढ़िए, क्योंकि दाऊद के अंदर अधिकतर यीशु मसीह की सारी स्वभाव जो थे वो यीशु मसीह के स्वभाव जो थे वो दाऊद के अंदर पाए जाते थे। Even the beggar said son of David. He did not say son of Abraham. He did not say son of Jacob, though he was an Israelite. इसीलिए उसको जो है सन ऑफ डेविड कहा गया, उसको सन ऑफ जेकब नहीं कहा गया, सन ऑफ अब्राहम नहीं कहा गया, अब्राहम का पुत्र नहीं कहा गया, दाऊद का पुत्र कहा गया। There is something there is a treasure in all these words, root of David, son of David. So you will find the characters of Jesus Christ in David. इन सब शब्दों के अंदर एक अद्भुत आनंद है और सच में आप दाऊद के अंदर यीशु मसीह को पाएंगे। Hallelujah. He was kind, he was forgiving, he was humble like Jesus. वो दयालु था, वो माफ करने वाला था, वो नम्र था, बिल्कुल वैसे ही जैसे यीशु मसीह था। Hallelujah. So all these qualities, they were in Jesus. So if you see, because the Old Testament is the mirror of the New Testament. आप देखिए जो पुराना नियम है वो एक शीशा है नए नियम का, जिसके अंदर if you don't see into the mirror, you're not able to know how you are looking. So if you want you want to explore Jesus, you need to go into the Old Testament. अगर आप शीशे के अंदर नहीं देखेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि आप कैसे दिख रहे हैं, पर अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप कैसे हैं तो निश्चित रूप से आप पुराने नियम को पढ़िए। पुराने नियम को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप किस तरह के हैं। Hallelujah. See, if you study the word of God in the Old Testament, right from Genesis to Malachi, you need to find Jesus in every chapter. अगर आप पुराने नियम को उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक पढ़ेंगे तो हर चैप्टर के अंदर आपको यीशु मसीह मिलेगा। You need to find out that, you need to explore that. आपको ढूंढना पड़ेगा, वो है उसके अंदर, लेकिन वो आपको ढूंढना पड़ेगा। In Exodus, he is the restorer. एक्सोडस में, निर्गमन में उसने वो बचाने वाला ठहरा। Hallelujah. Just as Moses became the redeemer or the restorer, he is the restorer. Jesus is the restorer for us today. जिस तरह से कि मोसेस ने प्रत्यक्ष रूप में मोसेस था लेकिन उसके अंदर यीशु मसीह ने काम किया, उसी तरह से इस समय में हमारे यीशु मसीह जो है वो हमें बचाने वाला है। जैसे मोसेस ने इजराइलियों को बचाया, मूसा ने इजराइलियों को बचाया, वैसे ही यीशु मसीह हमें बचाने वाला है। Hallelujah. So it is very beautiful to
meditate on the word of God. If you now, the last word I would like to call upon is Joshua chapter 1, verses 8 and 9. We will read it. We are short of time. हम यहोशू की किताब निकालेंगे और उसका पहला अध्याय और उसकी 9वीं और 10वीं आयत कि किस तरीके से हमें वचन के लिए कार्य करना है, हमने अपने अंदर क्या परिवर्तन लाने हैं, ये हमें Yes, this book, 8th and 9th word, it says, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou may observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Praise the Lord. सब कुछ इस वर्ष के अंदर लिखा हुआ है. ये दोनों वर्सेस जहां पर इस तरह से लिखा हुआ है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो उसमें लिखा है उसके अनुसार करने में तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा. क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी कि हिया बांध दृढ़ हो जा और भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां कहीं तू जाएगा वहां वहां यहोवा परमेश्वर तेरे संग रहेगा. और आज का जो वचन है उसकी चारों चीजें हमें इन दोनों आयतों में दिखाई देती हैं. Hallelujah. So see this, the word of God, the importance of the word of God is that it will make you prosperous, successful in every walk of your life. और आप देखिए कि जो परमेश्वर का वचन है वो क्या कहता है कि आपको वो प्रोस्पेरस करेगा, आपको वो सफल करेगा, आपके सारे काम जो होंगे सफल होंगे, आपको हर चीज की किसी भी चीज की कोई कमी ना होगी और आप एक प्रभावशाली व्यक्ति बनकर उभरेंगे. So this is how the word of God is going to help us. This is how the word is going to rebuke us. This is how the word of God is going to correct us. This is how the word of God is going to correct us. So never forget these four fingers now. आपसे मैं फिर यही कहना चाहूंगा कि आप जो है अपनी 4 उंगलियों को बिल्कुल ना भूलें, जो हमें प्रशिक्षण देती हैं, सिखाती हैं, टीचिंग देती हैं, जो हमें रिब्यूक करती हैं, हमारी गलतियों को सुधारती हैं और जो हमें करेक्ट करती हैं, जो कि हमें इब्रानियों के 12वें अध्याय की 5वीं-6वीं आयत में था, और वो हमें प्रशिक्षण देती हैं कि हमें वचन को किस तरीके से बांटना है. आप जब भी अपने हाथ देखेंगे इन चारों उंगलियों के विषय में सदैव सोचें. Hallelujah. Praise the Lord. So read the word of God, meditate it day and night, and be successful in every walk of your life. इसलिए मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप इस किताब को पढ़िए, इस वचन को पढ़िए, पवित्र बाइबल को पढ़िए और इसके ऊपर ध्यान दीजिए और जो कुछ उसमें लिखा है उसी के अनुसार अपने जीवन को चलाने की कोशिश कीजिए. There is nothing more important than the word of God in this world. इस संसार के अंदर परमेश्वर के वचन से ज्यादा जरूरी कोई चीज नहीं है. Absolutely, there is nothing more important than the word of God. वास्तविकता में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि इसके अलावा इस संसार में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ भी जरूरी नहीं है, कुछ भी अमूल्य नहीं है. ये हमारा एक अमूल्य धरोहर है. Hallelujah. Praise the Lord. May God help each one of us. May the Holy Spirit help each one of us to become stronger and stronger every day by reading the word of God and making ourselves available for the word of God. परमेश्वर की प्रशंसा हो और मैं आप विनती करता हूँ कि पवित्र आत्मा जो है वो आपको वचन पढ़ने की हिदायत दे, आप उसके अंदर मनन करें, वो आपकी धार्मिकता को बढ़ाए और आप आगे आगे प्रभु के अंदर आगे आगे बढ़ते जाएं और प्रभु के वचनों को फैलाने का भी कार्य करें. God bless you all. आप सबको परमेश्वर आशीषित करे. आमीन. Amen.